Bismillah Rahmanir Rahim. Now I'll move to the next part of the organic chemistry introduction, and that is the alkanes. I told you earlier that these hydrocarbons, they are broadly classified into three categories. Number one is the alkanes, number two is the alkene, and number three is the alkyne. Now, what's the reason? What is meant by ane, ene, and ine? Ane means that all the covalent bonds in the compound are single. Ene means that there must be at least one double bond in the structure. Ine means that there must be one triple bond in the structure. Okay, so I will teach you only alkanes, alkenes. If I have time, I'll let you know about the alkynes also. Now move to the slide, which is giving you alkanes. So structural formulas for the isomers of non-cyclic alkanes up to C6. It means that up to C6, यानी कि हेक्सेन तक, we can write the isomers, ठीक है? और नॉन साइक्लिक का मीन्स के स्ट्रेट चेन्स हैं, ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर्स हैं. और रिक्वायरमेंट क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन्स जहां पे ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन्स आर सिंगल बॉन्ड्स. रिमेंबर दैट द नेम एन इज गिवन for the single bond in the structure, and this single bond is carbon to carbon. So carbon to carbon, if all the bonds are single, this is called alkanes. Now the general formula for the alkane is CnH2n plus 2. अब आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है. Okay, you need to practice yourself by drawing the structural formulas for all the isomers that can be formed by this. So CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14. If you remember the homologous series, see the difference between CH4 and C2H6 is CH2. The difference between C2H6 and C3H8 is again CH2, and so on. So आप इसके draw करें. In the upcoming slides, we will talk about some more important things. Now my next slide is very important, and that is the naming of these compounds, these isomers. So what I am going to do, I'll use the method which is called IUPAC method. और नॉन साइक्लिक एल्केन्स को मैं करूंगी अप टू C6, लेकिन फॉर यू प्रैक्टिस टिल C10. ओके, यू प्रैक्टिस C10. तो मैं फर्स्ट 6 आपको दे रही हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आपकी जो है वो C7 से C10 है. और जिस वक्त मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आई विल अपलोड द असाइनमेंट, देयर आई विल आस्क यू. Okay, so I'm going to give you only one assignment related to this introduction to organic chemistry topic. Okay, book जो है वो रिचर्ड थॉर्नले की है, ठीक है. उसमें जो यूनिट है वो दैट इज 3.35. अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इससे पहले कि आई विल गो फर्दर, मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशंस दे दूं कि हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई go to here, let me try if I can share the, you know, this whiteboard over here. No, it's not possible right now. Okay, it's not possible. So again I go to the main slide. So डिटर्मिन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. जब भी हम किसी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैथ में आपको पता है METH मैथ का मतलब होता है 1.
eth means 2, proc means 3, but means 4, pent means 5, hex means 6. तो ये MEPBPH. So why this picture is over here? Because this is the meme which is made from using these words. Monkeys eat peeled bananas. इससे आपको याद रह जाएगा कि पहले मेथन है, फिर एथन है, फिर प्रोपन है, फिर ब्यूटेन and pH, pentane and hexane. तो हम सबसे पहले जो है वो डिटरमिन करते हैं whenever we are going to name any hydrocarbon नॉन साइक्लिक यानी कि ओपन चेन, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं. सो वी फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट करते हैं कि हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस थिंग वी गिव द नेम, एंड इसे हम कहते हैं पेरेंट नेम. ये होता है पेरेंट नेम. Now let's move to the next slide. उसके बाद हम एन जो है वो लगाते हैं to show that it is the alkane and all the carbon to carbon bonds are single. So अगर मैं meth, eth और pro की में करूं तो ये structures ऐसे draw होंगे. If I count like this, this is methane, this is ethane, this is propane, this is butane, this is pentane, and this is hexane. So if I count 1, 2, 3, 4, 4 means but means 4, or N means all the bonds are carbon to carbon are single. उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप है वो मैं देखती हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अगली उसमें आ गए हैं तो सी. अब याद रखिएगा कि समटाइम्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. मैं एक आपको डिटेल एग्जांपल आगे करवाऊंगी. अभी आप सिर्फ पॉइंट्स जो जस्ट listen very carefully the points, and then we will do one example where I will apply all these points. Okay, so application we'll do in the upcoming slides. So सबसे पहले होता है कि हमने अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूएंट्स मोस्टली इन अल्केन्स 3 types के होते हैं, right? Number 1 is called CH3, which is called methyl. Second is C2H5 या CH3CH2, इसे कहते हैं ethyl. और जो थर्ड होता है वो होता है CH3CH2CH2, उसे कहते हैं propyl, या उसका फॉर्मूला लिख दें C3H7. ठीक है. अच्छा, अब ये मेजॉरिटी जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर. So 3 types के structures normally you can encounter while naming using IUPAC naming system, nomenclature system. One is the methyl, second is the ethyl, and third one is the propyl. अच्छा, उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम prefixes use करते हैं. मिसाल के तौर पे, for example, if there is any structure, pentane, 5 carbon structure, and there is one substituent present on carbon number 2 and one substituent is present on carbon number 4, and the 2 same substituents are present, तो हम उसके लिए word use करेंगे di. तो हम उसको methyl नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, dimethyl. इसी तरह अगर 3 सेम हैं तो ट्राई, 4 सेम हैं तो टेट्रा. ठीक है. इसके साथ हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो रिमेंबर करनी है कि जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए. उसकी हमें लोकेशन भी पता होना चाहिए. वी शुड नो द लोकेशन ऑफ द कार्बन व्हिच इज बेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट. For example, अभी मैंने आपसे कहा है कि if one substituent methyl is present on carbon number 2 and the other one is present on carbon number 4, so how can I write this thing? 2 same substituents but on different carbons. So how I can name this? I can name is that 2, 2 is the location number of carbon bearing the substituent methyl. 4 is the location number of carbon bearing the second substituent,
ओके, डैश, स्मॉल डैश आप डालेंगे और आप लिखेंगे डाई methyl. Location number is also there, number of substituents is also there, and the name of the substituent is also there. So I'm repeating, this is 2,4 dimethyl. Okay, उससे आगे आपने पेरेंट का नाम लगा देना है. अगर पेंटेन मैंने आपसे कहा है तो वो पेंटेन बन जाएगा, अगर हेक्सेन है तो हेक्सेन बन जाएगा, एंड सो ऑन. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपके पास, again I'm going to talk about the structure pentane. If carbon number 2 is bearing methyl substituent and carbon number 3 is bearing ethyl substituents, अब two different substituents हैं on two different carbons. Okay, so आपने क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है. आप सबसे पहले लिखेंगे 3 ethyl, comma 2 methyl, ठीक है, पेंटेन. इज दैट ओके? सो इन चीजों में आपने देखना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यू हैव टू नेम देम. अच्छा, अब ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं. लेट मी गिव explain to you what I have said for the same substituents. Number 1, this is pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane, all the single bonds. So this is the parent name is pentane. Okay. अच्छा, अब इधर है पेरेंट कितनी है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, कंटिन्यूस चेन. आप ऐसे जाएं 1, 2, 3, 4 तो भी यही लॉन्गेस्ट है. अगर आप ऐसे आए 1, 2, 3, 4 तो भी जो है लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन ही है. ठीक है, ऐसे जाएंगे एल शेप में आएंगे तो भी ब्यूटेन है, और अगर आप स्ट्रेट आएंगे तो भी ब्यूटेन है. ओके, अगर मैं एल शेप पे आती हूँ यूं करके, इफ माय मूवमेंट इज लाइक दिस, ये मैं आ रही हूँ और ये एल शेप आ गया. ठीक है, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4. ओके, सो अगर मैं ऐसे आ रही हूँ 1, मैं ऊपर से भी आ सकती हूँ 1, 2, 3, 4. मैं ऐसे भी आ सकती हूँ 1, 2, 3, 4. मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि मूवमेंट कौन सी आपकी करेक्ट है. अगर आप ऐसे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, सो दिस 2 कार्बन आपकी जो है वो लोकेट हो जाएगी बेयरिंग दिस CH3 ग्रुप, राइट. इफ आई गो फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, तो कार्बन 3 लोकेट हो जाएगी आपकी बेयरिंग द मेथल ग्रुप. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी मूवमेंट फ्रॉम दिस टू दिस होनी चाहिए या फ्रॉम दिस टू दैट होनी चाहिए, इस एंगल में होनी चाहिए. इसका इट्स अ वेरी इजी टू डिसाइड. द पॉइंट इज, द रूल इज दैट यू शुड गिव द लीस्ट नंबर टू द कार्बन बेयरिंग substituents. अगर I move from here 1, 2, so it's the carbon 2 which is having methyl substituent. If I go from here 1, 2, 3, so it's the carbon 3 which is bearing the substituents. But as per the rule, I should have given the least number to the carbon bearing substituents. वो इसी तरह ही पॉसिबल अगर मैं इस डायरेक्शन से आऊं. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 पे कौन सी काइंड का सब्स्टिट्यूएंट है, मेथल. सो 2 methyl. व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट, ब्यूटेन. तो मैंने ब्यूटेन लिख दिया. इज दैट ओके? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. 1, 2, 3 ऐसे आए 1, 2, 3 तो भी लॉन्गेस्ट चेन आपकी प्रोपेन ही है. ऐसे आए 1, 2, 3 तो भी लॉन्गेस्ट चेन है. चलिए, अगर मैं ऐसे आ रही हूं तो मैंने देखा कि दिस कार्बन 2 is bearing 1 methyl group here and 1 methyl group here. अगर मैं ऐसे आ रही हूँ 1, 2, 3, so again I saw that this carbon
is having this methyl substituent and this methyl substituent. Now the carbon number is the same. How many substituents are present? 2. Same है या different है? Same है. तो मेरा नाम यहाँ पे हो जाएगा 2 2. ओके, नेट चला गया था जिसकी वजह से वो ब्रेक आ गया. आई वाज टॉकिंग के 2 2 dimethyl and the name of the parent is propane. Why I have written 2 twice? Because 1 2 is representing this and the other, since the location is the same, so और दूसरा location पे उसी location में एक और methyl group है, so I have to write the location twice. Next I move to the next slide. अब हम nomenclature की जो भी rules regulations है उसकी हम practice करते हैं. Okay, so for example this is a figure, बड़ी लंबी figure है, weird सा structure है और line structure दिया हुआ है. अच्छा, लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होता है हमें पता है कि ये पहली कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, ये तीसरी कार्बन है, ये फोर्थ वन है, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन, दिस इज सेवंथ वन, दिस इज एट्थ वन एंड दिस इज द नाइन्थ वन. सो मुझे जरूरत नहीं है सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच लिखने की, टाइम वेस्ट करने की एंड टू यूज मोर स्पेस. ओके, सो आई हैव टू बी वेरी ब्रीफ. अच्छा, अब इसमें मैंने देखा है कि इस तरह में इफ आई काउंट फ्रॉम लाइक दिस, तो मेरा जो टोटल कार्बन है वो 9 है एंड द पेरेंट इज 9. सेकेंड काम मेरा ये होता है कि मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है कि हाउ मेनी और व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. अगर मैं आपको देखूं तो एक कार्बन नंबर 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है विच इज नॉट मेथल भी नहीं है, एथल भी नहीं है, प्रोपल भी नहीं है, बल्कि क्लोरो ग्रुप है, Cl क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, राइट. अब अगर मैं इधर आ जाऊं तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है मेथल, और अगर मैं इधर आ जाऊं 6 पे तो अगेन मेरे पास मेथल. तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए अपने 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. 2 तो उसमें मेथल सब्स्टिट्यूएंट्स है और एक उसमें क्लोरो है. अब मेरी नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन. वो मेरी नॉनेन है, लेकिन अगेन आई एम एट द क्रॉस रोड के आइदर आई शुड काउंट फ्रॉम हियर और फ्रॉम देयर. सो रिमेंबर कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गिव द लीस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट. जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो वो 2 पे आता है, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो वो 4 पे आता है. सो ये डायरेक्शन मेरी अप्रूव हो गई कि आई हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन टू असाइन द पेरेंट नेम. अब सबसे पहले आपने यहाँ लिखते हैं 2 क्लोरो, उसके बाद आप लिखेंगे 3, 6 डाई मेथल. ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये क्या कह रहे हैं, ये अब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को बता रहा है, मेथल सब्स्टिट्यूट, और ये उसने हाईलाइट किया. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. ये मैंने आपको बता दिया है पहले कि लोकेशन भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो है दैट इज इम्पोर्टेंट. अब हमें इसका नाम देखना है असल में. तो लेट्स सी कि व्हाट्स द नेम इज. इसका नाम हमारा आता है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है क्योंकि सी पहले आता है बाद में, तो ये नाम आ जाएगा 2 क्लोरो डैश 3, 6 डैश डाई मेथल मोनेन. इज दैट ओके? आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो. और एक दफा फिर मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं एक ही असाइनमेंट दूंगी which would be a kind of असेसमेंट, और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नकल कर सकें. इफ यू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी
clearly, only then you can do that. और उसकी जो submission भी हो, submission के बाद जिस वक्त उसको वो सिर्फ for you know I'll look into it कि मैंने उसको restricted देनी है submission या मैंने open submission देनी है. So इस week, by the end of this week, I hope कि मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर complete कर लूँगी nomenclature. कल मैं आपको alkenes के बारे में explain करूँगी. Thank you so much.